And pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Governmental Guru. Let's compete. Today, I will discuss digital literacy. It is part 4. In this part, I will discuss what is digital technology in education. Also, I will discuss history of digital technology in education. How can it evolve actually? And then types of digital technology in education. Definitely, this part would be interesting one. And also, I will explain 10 MCQs. So each and every time my video contain explanation with MCQs. So it is very useful for UPSC principal and vice principal exams. So please my friends, till the end listen the video and get complete information about all these things. So you see my channel Asit Government Tool Guru. Let's compete. Please subscribe, like and share my channel. If you see the video, do not forget to click on the subscribe button. My WhatsApp number it is 8327782034. If any contact is there, if any query is there, you contact with me and clear your doubt. Again, join my WhatsApp number. It is 8327782034. If any query is there, you contact with me and clear your doubt. So now I am going to discuss about digital literacy. Okay, it is part 4. What is digital technology in education? What is digital technology in education? It is clearly given. You see, digital technology in education incorporates electronic gadgets, virtual learning platforms, and software tools to undertake learning and teaching. ओके सो इसमें मेन थिंग है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में आपको मोबाइल फोन, टैबलेट, आपका लैपटॉप, डेस्कटॉप, आपका सपोज इंटरेक्टिव बोर्ड, राइट? सो ऑल दीज थिंग्स एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एक्चुअली रिक्वायर्ड। क्लियर? Virtual learning platforms, e-learning platforms, so many e-learning platforms are there. Suppose you see Google Classroom, Moodle, Coursera, Udemy, Byju's, Khan Academy, Canvas. So many actually learning platforms are there, and the students actually they can learn about the course, they can face the exam, they can communicate with the virtual tutor, they can face assessment and worksheet exam, they can complete also project work, and also the students can be assessed properly and getting so many learning materials like video lecture, like PDFs. Okay, and software tools, different type of software tools also I will discuss. Different so we incorporate these things. It means to conduct learning and teaching through online. So same thing, same definition it is given. Digital technology in education incorporates electronic gadgets, virtual learning platforms and software tools to undertake learning and teaching. ओके, सो इसमें टूल्स के ऊपर देख लीजिए जो लर्निंग प्लेटफॉर्म्स तो मैं बताया, गैजेट्स तो आप जानते हो, तो उसमें सॉफ्टवेयर टूल्स में फर्स्ट यू सी प्रोडक्टिविटी टूल्स। ओके, हेल्प विथ एवरीडे वर्क, एग्जांपल्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल डॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल शीट्स. सो एवरी डे we need these things. Okay, suppose in word actually we can write something. Google documents also it is very important one. We can share suppose any collaborative project, then Google documents also we just we must have mail ID, and all the members they must have mail ID, and at that time different we can share the Google documents. एंड स्पेसिफिकली सपोज एक ग्रुप में 15 मेंबर से एक मेंबर सपोज मैथ्स के ऊपर कर रहा है, कि अनदर मेंबर साइंस के ऊपर कर रहा है, अनदर वन सोशल साइंस के ऊपर कर रहा है, तो ये जो चीज की और एक क्विज के ऊपर कर रहा है, तो उसमें सबका पार्ट जब कर रहे हैं और सब उसको देख रहे हैं और वो एक्सचेंज होता जा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल शीट्स. सो ये सब प्रोडक्टिविटी टूल्स है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. ठीक है, फिर हम चलेंगे डेवलपमेंटल टूल्स.
जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यूज टू क्रिएट सॉफ्टवेयर एंड वेबसाइट्स, इसमें विजुअल स्टूडियो कोड, राइट, इंटेलिज आइडिया, गिट, एक्लिप्स, ये सब है जो सॉफ्टवेयर का जो क्रिएट सॉफ्टवेयर एंड वेबसाइट्स। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंटल टूल्स, विजुअल स्टूडियो कोड, इंटेलिज आइडिया, गिट, एक्लिप्स, ठीक है। फिर हम देखेंगे डिजाइन टूल्स। डिजाइन टूल्स एक्चुअली यूज्ड फॉर ग्राफिक डिजाइन, ओके, एंड इन मल्टीमीडिया। एग्जांपल्स अडोब फोटोशॉप, फिग्मा, कान्वा, इसको आपको याद रखना है। तो यहां पर मैं 3 दे दिया, प्रोडक्टिविटी टूल्स, डेवलपमेंट टूल्स एंड डिजाइन टूल्स, ठीक है। फिर अदर टूल्स के ऊपर देखेंगे। नेक्स्ट वन, कम्युनिकेशन एंड कोलाबोरेशन टूल्स, जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, स्लैक, गूगल मीट, जिसमें क्या होता है, कोई मीटिंग कंडक्ट होता है, मेंबर्स के बीच में कोई डिस्कशन है, तो ये कम्युनिकेशन एंड कोलाबोरेशन, कोई कोलाबोरेटिवली सपोज हम डिस्कस करना चाहते हैं, वी वांट टू कोलाब इन कॉन्ग्रीगेट मैनर, वी वांट टू डिस्कस अबाउट ए टॉपिक एंड वी वांट टू एक्सचेंज आइडियाज, कि वी जस्ट कंडक्ट वन मीटिंग, तो उसमें बढ़िया गैदरिंग होता है। तो ये जूम है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, स्लैक है, गूगल मीट है। तो कम्युनिकेशन एंड कोलाबोरेशन, हेल्प पीपल कम्युनिकेट एंड वर्क टुगेदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स हेल्प ऑर्गेनाइज अ टास्क एंड ट्रैक प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो टास्क जो है, जो असाइनमेंट है, उसको ऑर्गेनाइज करेगा और प्रोजेक्ट्स को ट्रैक करेगा कि प्रोजेक्ट्स एक्चुअली कितना पोर्शन ऑफ द प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, कहां पर अभी प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट है। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स, एग्जांपल ट्रेलो है, आसना, जीरा, ये सब इसको याद रखना है, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स। नेक्स्ट वन, सिक्योरिटी टूल्स, प्रोटेक्ट कंप्यूटर्स एंड डाटा। अभी जो जैसे जो साइबर थ्रेट है, उससे प्रोटेक्शन के लिए सिक्योरिटी टूल्स है, एग्जांपल विंडोज डिफेंडर, नॉर्टन एंटीवायरस, बीट डिफेंडर, तो ये सब सिक्योरिटी टूल्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन, डाटा बेस टूल्स, यूज टू स्टोर, मैनेज एंड एनालाइज डाटा। डाटा जो है, डाटा को स्टोर करना, मैनेज करना, उसको एनालाइज करना, ओके। एग्जांपल माई एसक्यूएल, ओके, वर्कबेंच, माई एसक्यूएल वर्कबेंच, पीजी एडमिन, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, ठीक है। दीज आर द डाटा टूल्स, वो जो डाटा है उसको स्टोर करेगा, मैनेज करेगा और डाटा को एनालाइज करेगा। फिर नेक्स्ट वन, यूटिलिटी टूल्स, परफॉर्म सिस्टम, मेंटेनेंस एंड ऑप्टिमाइजेशन। कैसे परफॉर्मेंस है, परफॉर्म सिस्टम, मेंटेनेंस एंड ऑप्टिमाइजेशन, जैसे 7zip है, सी क्लीनर है, डिस्क क्लीन अप है, तो ये सब इट मींस मेंटेनेंस, ऑप्टिमाइजेशन और परफॉर्मेंस को चेक करता है। तो ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स है। तो भाई जो अभी डिजिटल लिटरेसी में आपको गैजेट्स चाहिए, ठीक है, आपको टूल्स चाहिए, सॉफ्टवेयर टूल्स चाहिए, ठीक है, और प्लेटफॉर्म्स चाहिए, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। सो ऑल दीज थिंग्स एक्चुअली मर्ज, राइट। सो इफ ऑल दीज थिंग्स एक्चुअली मिंगल, देन क्या होगा ना, स्मूथली टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एक्चुअली इट इज नॉर्मली मूविंग इन ए स्मूथ बेसिस थ्रू ऑनलाइन, राइट। तो नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन incorporates electronic gadgets, virtual learning platforms, software tools to undertake learning and teaching. These technologies are designed to enhance accessibility, engage and interact in education. इसको याद रखिए। ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन क्या क्या इनकॉर्पोरेट कर रहा है, आपको तो समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और वर्चुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है और सॉफ्टवेयर टूल्स है। इसमें वी कैन अंडरटेक लर्निंग एंड टीचिंग। सो these technologies are designed for 3 things. One is enhance accessibility, second one engage children, third one interact in education. तो enhance accessibility देखिए, फर्स्ट वन accessible होना चाहिए। So meaning technology helps students access individual content anytime, anywhere, including students who may have disabilities or difficulty
अटेंडिंग रेगुलर क्लासेस। आप देखिए जो एनहांस एक्सेसिबिलिटी है, जैसे अभी गूगल क्लासरूम है, आप जितना बच्चों का मेल आईडी लेकर उसमें उन मेल आईडी ले जाइए, उनको कनेक्ट कर दीजिए, नहीं तो उनका लॉगिन आईडी क्रिएट कीजिए। सपोज चाइल्ड एब्सेंट है, आप जो क्लास ले रहे हो उसका वीडियो लेक्चर उसको सेंड कर सकते हो, आप शेयर करोगे सभी बच्चों के पास चला जाएगा। जो क्लास है उसका पीडीएफ की पीपीटी शेयर कर सकते हो। कोई असाइनमेंट है कि कोई वर्कशीट है, आप गूगल डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब क्या है, आप सपोज द चाइल्ड इज एब्सेंट टुडे, क्लासरूम में नहीं है, तो वो भी जो वीडियो लेक्चर है, चाहे वो टॉपिक का पीडीएफ है कि कोई आप सपोज शेयर कर दिया असेसमेंट की वर्कशीट की कोई क्विज, ठीक है, तो इस तरीके से उसको मिल सकता है। ठीक है, तो एजुकेशनल कंटेंट एनी टाइम एनहांस एक्सेसिबिलिटी मीन्स एक्चुअली सबके पास एक्सेसिबल होना चाहिए। ओके, तो इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स। अच्छा, डिसेबिलिटीज के लिए क्या है, सपोज कोई हियरिंग इंपेयर्ड है, हियरिंग इंपेयर्ड केस में क्या है, तो आप इसका हेल्प लीजिए। जो हियरिंग है उसको स्पीच टू टेक्स्ट को कन्वर्ट कर दीजिए, आप है कि जो विजुअल इंपेयर्ड है उसको टेक्स्ट से स्पीच को कन्वर्ट कीजिए, उसके लिए आप है। तो आजकल टेक्नोलॉजी क्या है, फास्ट वन एक्सेसिबल होना चाहिए। ठीक है, जो रिमोट एरिया में जिनको अच्छा ट्यूटर नहीं मिल रहा है, वहां पर खान एकेडमी चल रहा है। यदि अच्छा ट्यूटर नहीं है, वर्चुअल ट्यूटर मिलेंगे, वर्चुअल क्लासरूम अटेंड कीजिए, एग्जाम दीजिए, आपको फीडबैक मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट वन एनहांस एक्सेसिबिलिटी। सेकेंड वन है एग्जाम्पल, यहां पर देख लीजिए, स्टूडेंट who cannot attend school can watch a recorded online lesson on a smartphone. A student with difficulty seeing can use a text to speech software to listen to the textbook. मैं वही बताया, आज चाइल्ड क्लास अटेंड नहीं किया, प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गूगल क्लासरूम है। ओके, वो ग्रुप में वीडियो लेक्चर का वीडियो चला जाएगा, पीडीएफ चला जाएगा, और कोई भी असाइनमेंट वर्कशीट टीचर कंडक्ट करना चाहते हैं वो चला जाएगा, शेयर हो जाएगा, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड वन, एंगेज स्टूडेंट्स। Technology makes learning interesting and attractive by using videos, animations, games, simulations and interactive activities. अभी देखिए एंगेज स्टूडेंट्स में फर्स्ट है वीडियोस है, डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोस, जो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, पूरा कंटेंट को ब्रीफली वेरी लुसिडली वो कंटेंट को एक्सप्लेन करता है विथ लाइव एग्जांपल्स। एनिमेशंस क्या है, जो पिक्चर इमेज बेसिस में, आप देखा होगा कार्टून जो है, जो जैसे मूव कर रहा है, कोई पिक्चर बेसिस में वो मूव कर रहा है, उसका जो इमेज को हम देख सकते हैं क्लियरली। पहले क्या बुक में था वो इमेज, और उसको मार्किंग किया गया था, मगर अभी इमेज पूरा इमेज में पूरा डिटेल्स हम देख सकते हैं। ठीक है, तो गेम्स है, गैमिफिकेशन। ओके, सिमुलेशंस में बताया था, जैसे सिमुलेशंस में वर्चुअल रियलिटी है, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा, और उसमें जो वर्चुअल इक्विपमेंट्स रहेगा और वर्चुअल गगल्स आप लगाएंगे, तो उसमें आप देखेंगे, मैं बताया था जैसे हार्ट बीट है, उसमें सपोज ब्लड फ्लो कर रहा है, आप जैसे रियली देख रहे हो, वो वर्चुअल एक्चुअली सिचुएशन है, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा। एक्चुअल नहीं है मगर एक रियल एक्सपीरियंस। वैसे आपका जो ऑगमेंटेड रियलिटी है, ऑगमेंटेड ग्लास मिल रहा है, और उसका ऑगमेंटेड रियलिटी में आप भी है। आप जब वो आपको यूज करके मोबाइल फोन को लेंगे, वो बुक में जो पिक्चर है उसके ऊपर रखेंगे, तो आपको पूरा पिक्चर के ऊपर पूरा डिटेल्स आ जाएगा, 3D आ जाएगा। ये जो AR VR ये सब 3D के ऊपर है। वर्चुअल रियलिटी मींस एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, और वो जो भी मींस चाहे सोलर सिस्टम हो, चाहे हार्ट का डायग्राम हो, कि कोई सर्जरी हो, उसका एक्सपीरियंस आप ले सकते हो, मगर वो रियल वर्ल्ड में नहीं, मगर वर्चुअल वर्ल्ड में आप देख सकते हो। ऑगमेंटेड रियलिटी वही है, ऑगमेंटेड रियलिटी उसका ग्लास है, ऑगमेंटेड ग्लास है, कि सपोज उसका आप है, आप वो पिक्चर के ऊपर लेंगे तो आपको 3D मॉडल आ जाएगा। ठीक है, तो ये है एंगेज। इस तरीके से हम स्टूडेंट्स को एंगेज करेंगे। और इंटरेक्टिव एक्टिविटीज में नहीं, असाइनमेंट्स है, वर्कशीट है, क्विज है, कंडक्ट होता है, और इजीली असेसमेंट होगा, उसको टीचर चेक नहीं करेंगे, वो इमीडिएटली असेस हो जाएगा, आपको कितना मार्क मिला, कहां कितना करेक्ट है, कितना इनकरेक्ट है, किस एरिया में आपका सपोज वीकनेस है, वो इस तरीके से आपको फीडबैक मिलेगा। तो एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ ओनली रीडिंग अबाउट द सोलर सिस्टम इन ए टेक्स्ट बुक, स्टूडेंट्स कैन वॉच ए 3D एनिमेशन शोइंग द प्लैनेट्स मूविंग अराउंड द सन। जो 3D एनिमेशन में बताया,
3D एनिमे शोइंग द प्लैनेट्स मूविंग अराउंड द सन, उसको देख सकते हो ऑगमेंटेड रियलिटी में और वर्चुअल रियलिटी में। इसको मैं प्रीवियस क्लास जो इसका पार्ट था पार्ट 3 में मैं डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, इंटरैक्ट इन एजुकेशन। टेक्नोलॉजी अलाउड स्टूडेंट्स एंड टीचर्स टू कम्युनिकेट, पार्टिसिपेट, आस्क क्वेश्चंस एंड रिसीव इमीडिएट फीडबैक। जैसे गूगल मीट है, जूम है, माइक्रोसॉफ्ट टीम है, उसमें देखिए आप उसमें क्लास होगा, क्लास में इंटरेक्शन होगा, ठीक है, और उसमें जो भी प्रेजेंटेशन होगा तो उसका पीपीटी शेयर कर दिया जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी ही हेल्प करता है। तो इंटरैक्ट इन एजुकेशन, टीचर कंडक्ट्स ए क्विज यूजिंग एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, students answers questions on their tablets and the results appear immediately, the teacher can then, जो आप देखिए जो गूगल फॉर्म में आप क्वेश्चन कर दो, गूगल फॉर्म में क्वेश्चन करके उसका आप आंसर फीड कर दो और शेयर कर दो, वो ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगा कितना परसेंटेज मोर देन, सपोज 90% है, कितना मोर देन 80 है, पूरा पाई चार्ट पूरा एनालिसिस होकर आ जाएगा। तो उसमें कोई टीचर्स को इतना मेहनत करना नहीं पड़ेगा। तो इंटरैक्ट इन एजुकेशन, तो ये तीनों जो है एक्सेसिबिलिटी, ठीक है, जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हेल्प करता है, तो उसमें मेन 3 चीज है, एक्सेसिबिलिटी, एंगेज एंड इंटरैक्ट इन एजुकेशन, ठीक है। तो ये 3 थिंग्स, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। आप देख लीजिए, एक यहां पर क्लियरली दिया है कि द टेक्नोलॉजीज आर डिजाइंड टू एनहांस एक्सेसिबिलिटी, एंगेज एंड इंटरैक्ट इन एजुकेशन। तो इसी को एनहांस के लिए जो टेक्नोलॉजी को डिजाइन किया गया है कि इसे सब एक्सेस कर पाएंगे एनीवेयर एनी टाइम, और कैसे स्टूडेंट्स को एंगेज किया जाएगा, जैसे एनिमेशन है, सिमुलेशन है, इंटरेक्शन है, ओके, और इंटरैक्ट इन एजुकेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, डिजिटल टेक्नोलॉजी रेंज फ्रॉम entry level tools to the ones at the higher end, from basic tools like computers, tablets to more complex technologies like artificial intelligence, virtual reality, LMS in education। अभी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आ गया, क्लासरूम को पूरा मैनेज किया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके LMS के ऊपर भी डिस्कस मैं प्रीवियस वीडियो में किया था। तो LMS जो है आपका गूगल क्लासरूम है, LMS गूगल क्लासरूम है, और मूडल है, कानभास है, उसमें क्या है पूरा क्लासरूम आप बच्चों को कनेक्ट कीजिए, ग्रुप कीजिए। तो LMS में क्या है, पूरा वहां पर अटेंडेंस हो जाएगा, क्लास हो गया, क्लास होने के बाद उसका वीडियो लेक्चर ग्रुप में शेयर किया जाएगा, इंस्टेंटली बच्चों को मिल जाएगा, और आपको पीपीटी शेयर किया जाएगा, असाइनमेंट होगा, वर्कशीट होगा, क्विज होगा, तो बच्चों को प्रॉपरली एवेल्युएट किया जाएगा, बच्चा कहां पर वीक है उसको डिटेक्ट किया जाएगा। तो LMS जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे गूगल क्लासरूम है, आप चाहे बच्चा प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, गूगल क्लासरूम में जो भी यही है, सभी बच्चों को ऐड कर दिया जाएगा, उनका मेल आईडी नहीं तो मेल आईडी उनका क्रिएट किया जाएगा, आप लॉग इन कीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा, जो क्लास हुआ है उसका वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, पीपीटी मिल जाएगा, आपको कोई असेसमेंट करना है, वर्कशीट करना है, क्विज करना है, कोई क्वेश्चंस का आंसर देना है, सब कुछ आ जाएगा उसमें। तो वही है, LMS एक्चुअली मेनली मैनेज द स्टूडेंट्स, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब जो न्यू टेक्नोलॉजीज आ रहा है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वर्चुअल रियलिटी में बता चुका हूं, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा, और एक वर्चुअल इसमें आपको वर्चुअल रियलिटी का एक गॉगल्स आप लगाएंगे, तो आप पूरा जैसे आप सोलर सिस्टम के अंदर हो, जैसे आप इट मींस हार्ट में कैसे ब्लड फ्लो कर रहा है आप देख रहे हो, ठीक है। तो ये सब आप एंजॉय कर रहे हो, तो एक एक्सपीरियंस है, मगर वो आप रियल वर्ल्ड में नहीं हो, आप वर्चुअल वर्ल्ड में हो। तो ये LMS इन एजुकेशन, ये सब न्यू टेक्नोलॉजी है। सो फ्रॉम बेसिक टूल्स लाइक कंप्यूटर्स, टैबलेट्स टू मोर कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज लाइक AI, VR, LMS इन एजुकेशन, ठीक है। तो इन स्कूल्स देयर आर वेरियस मैनिफेस्टेशंस ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। इट encompasses the e-learning platforms that offer a regulated learning environment. Many e-learning platforms are there. मैं बताया था आपको, गूगल क्लासरूम है, मूडल है, कोर्सेरा है, उडेमी है, बाइजूस है, खान एकेडमी है, कानवास है, स्किल्स है, so many e-learning platforms are there that offers a regulated learning environment for the students. नेक्स्ट वन, e-learning platforms के ऊपर थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। E-learning platforms are online systems where teachers and students can access lessons, assignments, videos, quizzes, study materials and assessments in an organized manner. तो e-learning assessment जो गूगल क्लासरूम है,
ओके, गूगल क्लासरूम में सपोज 40 स्टूडेंट्स है, आप गूगल क्लासरूम को कैसे यूज करेंगे, आप जो स्पेसिफिक टीचर उसका नाम दे देगा और उसका क्या सब्जेक्ट है, ठीक है, और गूगल कैलेंडर के हिसाब से कौन सा पीरियड में आपका क्लास है डिटेल्स दे देगा और बच्चों को उसमें ऐड कर देगा, बच्चों का मेल आईडी लेके, नहीं तो खुद आईडी क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, उसमें क्लासेस होने के बाद उसमें वीडियो लेक्चर जो है शेयर हो जाएगा, पीपीटी शेयर हो जाएगा, असाइनमेंट, क्विजेस, ओके, शेयरिंग नोट्स, ओके, तो ये सब आ जाएगा। तो चाहे बच्चा प्रेजेंट हो कि एब्सेंट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा को वो जब वो लॉगिन करेगा उसको डिटेल्स मिल जाएगा कि सपोज आज क्लास में क्या 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 था, कंटेंट क्या था, उसका वीडियो लेक्चर है, उसका पीपीटी है, और कोई उसके ऊपर असाइनमेंट है, कोई उसके ऊपर नोटशीट है, कोई उसके ऊपर क्विज है, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, जो दीक्षा प्लेटफॉर्म है प्रोवाइड्स डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेस। ओके, वो डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेस दे रहा है, स्टडी मटेरियल्स दे रहा है अप टू स्टैंडर्ड 12, वीडियोज है, कोर्सेस है, टेक्स्ट बुक्स फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, ये सब मिल जाता है ये प्लेटफॉर्म में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दीक्षा प्लेटफॉर्म डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ठीक है, और मूडल भी एक एलएमएस सिस्टम है। मूडल एलएमएस सिस्टम तो स्टूडेंट्स को मैनेज करता है, क्लासरूम को मैनेज करता है थ्रू ऑनलाइन, प्रोवाइड्स एन organized learning environment with courses, assignments, discussions and assessments. ठीक है, so these are the varieties of e-learning platforms are there. इसमें क्या है, स्टूडेंट्स दे कैन access lessons, assignments, videos, quizzes, study materials and assessments in an organized manner. ठीक है, तो उसमें आप देख लीजिए यहाँ पर डिफरेंट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। मैं बता चुका हूं कि गूगल क्लासरूम है, फ्री प्लेटफॉर्म बाय गूगल फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स टू मैनेज क्लासेस, शेयर मटेरियल्स एंड असाइनमेंट्स, बेस्ट फॉर स्कूल्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। इसके ऊपर क्वेश्चन आपको मिल सकता है। सेकेंड वन मूडल है, ये भी एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ओपन सोर्सेस एलएमएस दैट अलाउज एडुकेटर्स टू क्रिएट ऑनलाइन कोर्सेस एंड ट्रैक स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, टू क्रिएट ऑनलाइन कोर्सेस। जो भी ये कोर्स इसमें जो आपका कोर्स है वो अपलोड होगा। ठीक है, और उसको स्टूडेंट्स, आप टीचर्स क्या करेंगे, लर्निंग मटेरियल्स प्रिपेयर करेंगे और इस प्लेटफॉर्म में अपलोड करेंगे, और स्टूडेंट्स एक्चुअली वो जो मटेरियल मिलेगा उसको वो असेस कर पाएंगे और उनका स्टूडेंट का प्रोग्रेस को ट्रैक किया जाएगा। तो ये बेस्ट फॉर स्कूल्स, कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशंस। कोर्सेरा है हायर एजुकेशन प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, जो बेस्ट फॉर हायर एजुकेशन और प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ऑफर्स ऑनलाइन कोर्सेस ऑफर करता है, स्पेशलाइजेशंस एंड डिग्रीज फ्रॉम टॉप यूनिवर्सिटीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस, बेस्ट फॉर हायर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। उडेमी है जो ऑनलाइन लर्निंग मार्केट प्लेस विथ थाउजेंड्स ऑफ कोर्सेस है, ओके, ऑन ए वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स, थाउजेंड्स ऑफ कोर्सेस है। बहुत इंपॉर्टेंट स्किल डेवलपमेंट, इसको याद रखना है, स्किल डेवलपमेंट एंड लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। और जो इडेक्स है वो प्रोवाइड्स हाई क्वालिटी ऑनलाइन कोर्सेस फ्रॉम लीडिंग यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड वाइड। जो वर्ल्ड में जो टॉप यूनिवर्सिटीज है, इंस्टीट्यूशंस है, ओके, उसका हाई क्वालिटी ऑनलाइन कोर्सेस अवेलेबल है। तो अगेन बेस्ट फॉर हायर एजुकेशन और प्रोफेशनल लर्निंग। जैसे बाईजूज है, लर्निंग आप विथ इंटरेक्टिव वीडियोज, लाइव क्लासेस एंड पर्सनलाइज लर्निंग। तो K-12 अप टू स्टैंडर्ड 12 स्टूडेंट्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन, ये सब आ जाता है बाईजूज में। खान एकेडमी बहुत पॉपुलर है, ओके, ऑफर्स फ्री कोर्सेस एंड प्रैक्टिसेस इन सब्जेक्ट्स लाइक मैथ, साइंस एंड मोर फॉर ऑल एज ग्रुप्स। तो बेसिकली मैथ, साइंस एंड मोर, ऑल बेस्ट फॉर स्कूल स्टूडेंट्स और सेल्फ पेस्ड लर्नर्स। आप में वही बताया, रिमोट एरिया में अच्छा ट्यूटर नहीं है तो खान एकेडमी वर्चुअल ट्यूटर देता है, उसमें आपको कोर्सेस मिल जाएगा, उसमें आपको प्रैक्टिस मिल जाएगा, और उसमें आप वर्चुअल ट्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, उनका क्लास अटेंड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वन लिंक्डइन लर्निंग, वो प्रोवाइड्स वीडियो कोर्सेस ऑन बिजनेस, टेक एंड क्रिएटिव स्किल्स टू एडवांस कैरियर्स। तो अगेन बेस्ट फॉर प्रोफेशनल्स कैरियर एडवांसमेंट। कानवास है, ये भी एक एलएमएस है जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, क्लासरूम को मैनेज करना, स्टूडेंट को मैनेज करना। ठीक है, तो एलएमएस यूज्ड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू मैनेज कोर्सेस, assignments and student communication, best for colleges, universities and institutions. Next one Skillshare है, Skillshare platform for creative people to learn, share and build new skills through online classes. Okay, तो इसमें बेस्ट फॉर क्रिएटिव लर्नर्स और जो हॉबिस्ट है। ठीक है, ये सब डिफरेंट एक्चुअली ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है। ठीक है,
पॉपुलर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से। चलो नेक्स्ट वन, लर्नर्स कैन यूज कंटेंट एंड कम्युनिकेट विथ टीचर्स एंड फेलो लर्नर्स थ्रू दीज प्लेटफॉर्म्स। इसमें क्या है, आप उसमें डायरेक्टली लाइव क्लासेस होता है, तो लाइव क्लास आप अटेंड किया, लाइव क्लास के बाद वो क्लास का वीडियो शेयर हो जाएगा, सबको मिल जाएगा, पीपीटी शेयर हो जाएगा, और क्लास के बाद कोई असाइनमेंट है, कोई वर्कशीट है, कोई क्विज है, कोई क्वेश्चन है, आपको मिल जाएगा, तो इमीडिएटली आप आंसर कर दीजिए और इमीडिएटली उसका एवेल्युएशन हो जाएगा। और फिर किस एरिया में आपका वीकनेस है, जिस एरिया में वीक है, फिर आपको उसी वीक एरिया में, जो स्पेसिफिक स्टूडेंट्स को उसी वीक एरिया में फिर उनका डेवलपमेंट के लिए फिर उनको इट मीन्स उनके लिए लाइव क्लासेस होगा और कुछ सिंपल एग्जांपल्स दिया जाएगा और फिर स्पेसिफिक टेस्ट होगा, फिर फीडबैक मिलेगा। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये जो अभी जो डिजिटल टेक्नोलॉजी से जो लर्निंग हो रहा है, लर्निंग एंड टीचिंग, तो सच training comes along with the educational apps, websites and multimedia tools that encourage students to learn in a fun way. ओके, और जो गैमिफिकेशन है आप देखेंगे, अभी मैं डिस्कस करूंगा, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल, जैसे एनिमेशन है, कोई इमेज जा रहा है, कोई इमेज को पूरा क्लियरली आप देख रहे हो, जैसे आप कार्टून्स, वही एनिमेशन से। सिमुलेशन में रियली आप वर्चुअल लैब में, जो वर्चुअल रियलिटी है, वर्चुअल लैब में आप देख रहे हो सर्जरी हो रहा है, हार्ट सर्जरी हो रहा है, वो एक्चुअली क्या है, आप रियल वर्ल्ड में नहीं हो, वर्चुअल वर्ल्ड में, मगर रियल एक्सपीरियंस ले रहे हो। वैसे ही जो ऑगमेंटेड रियलिटी है वही है। आप उसका ग्लास है, ग्लास को रखो पिक्चर के ऊपर, बुक में पिक्चर है, उसके ऊपर ग्लास में आप देख लो, वो 3D डायमेंशन का मॉडल पर क्लैरिटी आ जाएगा मॉडल के ऊपर, ठीक है। तो ये सब चीज में क्या है, एक फन वे टाइप ऑफ लर्निंग है, जो students actually they are very much exciting actually to learn the contents. Digital technology is also not limited to the classroom. It enables students and teachers to connect and work together remotely, creating enormous opportunities for educational worldwide. तो अभी रिमोट में क्या है, अभी ऐसा नहीं कि ओनली क्लासरूम में आपको प्रेजेंट होना है, आप क्लासरूम में प्रेजेंट नहीं हो तो गूगल क्लासरूम जो अभी है, गूगल है कि कैनवास है, मूडल है, उसमें जो वो मेनली ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना क्या है, आप प्रेजेंट नहीं हो, आप सपोज आज क्लासरूम में प्रेजेंट नहीं हो तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपका क्लास का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, पीपीटी मिल जाएगा, और आपको जो भी असाइनमेंट, वर्कशीट, क्विजेस हुआ वो सब मिल जाएगा, तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजी एक्चुअली क्रिएटिंग एनॉर्मस अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट वन, एग्जाम्पल्स देखिए, ऑनलाइन कोलाबोरेशन एग्जाम्पल देख लीजिए। द टीचर कंडक्ट्स ए लाइव क्लास यूजिंग गूगल मीट और जूम। आप गूगल मीट और जूम, जो कोविड पीरियड था, आप सब गूगल मीट है, जूम है, माइक्रोसॉफ्ट टीम है, उसमें लाइव क्लासेस हो रहा है, और लाइव क्लास के बाद जो भी क्लास होगा उसका वीडियो शेयर कर दिया जाएगा और पीपीटी शेयर कर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स आस्क क्वेश्चंस थ्रू चैट और वीडियो, आप चैटिंग और वीडियो में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। द टीचर शेयर्स वर्कशीट्स एंड वीडियोस थ्रू गूगल क्लासरूम। ओके, अभी टीचर्स क्या कर रहे हैं, वर्कशीट्स, वीडियोस, वो गूगल क्लासरूम, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म है, ओके, उसमें वीडियो, उसमें आपको पीपीटीज, आपको वर्कशीट्स, आपको असाइनमेंट्स, सब कुछ शेयर किया जाएगा इंस्टेंटली। वो क्लासरूम का जो 40 स्टूडेंट्स है तो उनको मिल जाएगा। स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर ऑन ए डिजिटल प्रोजेक्ट यूजिंग गूगल डॉक्यूमेंट्स है, मैं बताया था गूगल डॉक्यूमेंट्स है, तो गूगल डॉक्यूमेंट्स में सपोज 10 मेंबर्स है, तो 10 मेंबर्स एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उनका मेल आईडी कनेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और गूगल डॉक्यूमेंट्स पे स्पेसिफिक वही डॉक्यूमेंट को साइमल्टेनियसली 10 मेंबर्स यूज करेंगे। एक मैथमेटिक्स के ऊपर कर रहा है, एक साइंस के ऊपर कर रहा है, एक सोशल साइंस के ऊपर कर रहा है, कोई कम्युनिकेशन के ऊपर कर रहा है, कोई क्विज के ऊपर कर रहा है, तो अल्टीमेटली सबको शेयर होता जाएगा, वो चेंजेस मॉडिफाई होता जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बहुत अच्छा है। द टीचर, तो इसमें ये कोलैबोरेशन है प्रोजेक्ट रिलेटेड में। द टीचर रिव्यूज देयर वर्क एंड गिव्स फीडबैक ऑनलाइन, ठीक है, ये सब ऑनलाइन कोलैबोरेशन का मेरिट्स है, ठीक है। नेक्स्ट वन, हिस्ट्री हम देखेंगे थोड़ा, डिजिटल जो कैसे वो इवॉल्व हुआ, हिस्ट्री ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। 1980s में कंप्यूटर्स वी आर इंट्रोड्यूस्ड इन द क्लासरूम्स। फर्स्ट टाइम जो 1980s में कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस हुआ क्लासरूम में,
90s में रोल ऑफ इंटरनेट इन एजुकेशन स्टार्टेड टू बी डेवलप्ड। यहां पर 90s में इंटरनेट का रोल आ गया। ओके, एजुकेशन स्टार्टेड टू बी डेवलप्ड। ईयरली 2000s में डिजिटल टेक्नोलॉजी फाउंड इट्स रूट्स इन एजुकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो ईयरली 2000s में आपका डिजिटल टेक्नोलॉजी उसका जो रूट है वो डेवलप हुआ। 2010 में मोबाइल डिवाइसेस आ गया, कंटिन्यूड टू ब्रेक द वॉल्स ऑफ डिजिटल लर्निंग। और प्रेजेंट में आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, वर्चुअल रियलिटी है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, वेराइटीज ऑफ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है इन डिजिटल टेक्नोलॉजी कंटिन्यूज टू इन्फ्लुएंस एजुकेशन। मगर हम डिटेल्स उसको देखेंगे। आप देखिए 1980s में द हिस्ट्री ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज इन एजुकेशन गोज बैक टू द लेट 20th century. The first major change occurred when computers were introduced in the classrooms in the 1980s. अच्छा, पर्सनल कंप्यूटर्स वी आर मोस्टली यूज्ड फॉर। अच्छा, ये क्वेश्चन आता है जो 1980s में क्लासरूम में फर्स्ट टाइम कंप्यूटर्स एक्चुअली इंट्रोड्यूस किया गया, तो बेसिकली इट वाज यूज्ड फॉर एजुकेशनल गेम्स, बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग। बेसिकली एजुकेशनल गेम्स और बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग के ऊपर था। एट दे पेव्ड द वे फॉर फर्दर एडवांसेस इन टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन थ्रू आउट द डिकेड्स। तो इसमें जो क्वेश्चन आता है हिस्ट्री में, आपको देखना है कब 1980s में क्लासरूम में इंट्रोड्यूस हुआ, और जो इंट्रोड्यूस हुआ 1980s में क्लासरूम में स्पेशली इन व्हिच पर्पजेस, जो एजुकेशनल गेम्स एंड बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, फिर हम 90s को चलेंगे। 1990s में द की रोल ऑफ द इंटरनेट इन एजुकेशन स्टार्टेड टू बी डेवलप्ड फ्रॉम द 1990s। द अराइवल ऑफ ऑनलाइन रिसोर्सेस जैसे एजुकेशनल वेबसाइट्स, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ओपन न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑनलाइन कोऑपरेशन, ये सब स्टार्ट हुआ 1990 में। जो ऑनलाइन रिसोर्सेस आ गया, एजुकेशनल वेबसाइट्स आ गया, एलएमएस आ गया, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आ गया। ओके, तो इसमें 90s में बेसिकली ऑनलाइन रिसोर्सेस एक्चुअली उसका अवेलेबिलिटी स्टार्ट हुआ विद द डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड वाइड WWW वर्ल्ड वाइड वेब। Enormous volumes of information were uncovered, and for these students and educators now had access to resources and study materials harder to come by. तो 90s में आपका जो ऑनलाइन रिसोर्सेस धीरे धीरे अवेलेबल हुआ, और जो वर्ल्ड वाइड वेब से हम सो मच इंफॉर्मेशन हम अनकवर किए। ठीक है, और सो मच रिसोर्सेस, स्टडी मटेरियल्स धीरे धीरे अवेलेबल होने लगा। ठीक है, फिर 2000 में ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स आ गया। डिजिटल टेक्नोलॉजी फाउंड इट्स रूट्स इन एजुकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल टेक्नोलॉजी फाउंड इट्स, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज हुआ तो वो बेसिकली उसका रूट्स जो डेवलप हुआ है एजुकेशन में ईयरली 2000 में। इट वाज स्टीप्ड इन द रियलाइजेशन ऑफ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स लाइक Moodle एंड प्लेटफॉर्म्स फॉर ऑनलाइन कोर्सेस लाइक Coursera, ये सब आ गया। ठीक है, स्टूडेंट्स कुड नाउ स्टडी फ्रॉम होम in their own time and for anywhere across the globe. Traditional chalkboards were removed in favor of interactive technology like smart boards, digital projectors, making lesson dynamic and interesting. तो 2000 जो है वो जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का रूट था इन एजुकेशन, क्योंकि प्रोजेक्टर्स आ गया, स्मार्ट बोर्ड्स आ गया, और घर में भी बैठ कर चाइल्ड स्टडी कर रहा है, और ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सब आ गया, Moodle, Coursera, ये सब ऑनलाइन जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स आ गया। तो बोलते हैं कि 2000 जो है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी का जो रूट है एजुकेशन सिस्टम में डेवलप हुआ। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन 2010 एंड प्रेजेंट टाइम। 2010 में मोबाइल्स, स्मार्टफोन्स, by the 2010s mobile devices like smartphones and tablets continued to break the walls of digital learning. So now students could download education materials on the go. Similarly, अभी artificial intelligence है, machine learning along with virtual reality, digital technology has entered a new horizon. Okay, opening of avenues for जो personalized learning है, personally अभी प्लेटफॉर्म है जो अडेप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म, वो अडेप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म सपोज एक प्लेटफॉर्म जैसे ड्रीम बॉक्स है, वो मैथ्स के लिए, मैथ्स क्या है, आप क्लास अटेंड करेंगे। ठीक है, क्लास के बाद आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, आपको पीपीटी मिल जाएगा, और उसमें असाइनमेंट, वर्कशीट, और आप फ्रीक्वेंटली अटेंड द क्वेश्चंस। तो वो क्या करेक्ट है, इनकरेक्ट है, वो इमीडिएटली आपको बताएगा, क्या वीक एरिया है और आपका स्ट्रेंथ एरिया है,
डिटेक्ट करेगा, और जो वीक एरिया है फिर आपको वो कुछ लाइव एग्जांपल्स के साथ आप वो लर्निंग प्रोसेस को डेवलप करेगा। तो ऐसे करके आपको अल्टीमेटली फीडबैक देता रहेगा। तो जिस कंटेंट में आप वीक थे उस कंटेंट में फिर आप क्या हो जाएंगे ना, स्लोली ग्रेजुअली यू कैन डेवलप इन दैट कंटेंट। तो ये पर्सनलाइज लर्निंग यही है, ये पर्सनली एक चाइल्ड को कैसे उसका जो पर्टिकुलर कंटेंट के ऊपर वो कैसे ग्रो करेगा, ठीक है, वो सब लर्निंग अडेप्टिव प्लेटफॉर्म से एंड बेस्ड ऑन डाटा डिसीजन मेकिंग विद इन एजुकेशनल एनवायरनमेंट। तो ये जो प्रेजेंट टाइम में डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज आ गया और फास्टर आ गया, ठीक है। अभी भास्ट आकार में एक्चुअली डिजिटल टेक्नोलॉजी स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में यूज हो रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स देखेंगे। टाइप्स ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन क्या है? एलएमएस है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है, मोबाइल लर्निंग टूल्स है, वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, गैमिफिकेशन है, क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन है, डाटा एनालिटिक्स है। इसमें देखिए 8 टाइप्स ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, एलएमएस, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, मोबाइल लर्निंग टूल्स, वीआर, एआर, एआई, गैमिफिकेशन, क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन, डाटा एनालिटिक्स। तो इसके ऊपर अभी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखिए, ये जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में बार बार बताया कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में क्या है, क्लासरूम को मैनेज किया जाएगा, स्टूडेंट को मैनेज किया जाएगा, और पर्सनली स्टूडेंट्स को असेस किया जाएगा, एवेलुएट किया जाएगा। तो ये लर्निंग जैसे हमारा गूगल क्लासरूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर एक क्लासरूम को मैनेज किया जाएगा। गूगल क्लासरूम क्या है, जो भी सपोज 40 स्टूडेंट्स है तो 40 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनेगा, ओके। उनका ईमेल आईडी है तो उनको ऐड किया जाएगा, नहीं तो उनके लिए ईमेल आईडी क्रिएट किया जाएगा। तो आप खुद लॉग इन कर सकते हो, चाहे आप क्लास में प्रेजेंट हो ना हो, प्रॉब्लम नहीं है। यदि क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, ओके, आप एब्सेंट हो आज क्लास में, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आज क्लास में जो डिस्कशन होगा वो वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। आज क्लास में जो डिस्कशन होगा, क्योंकि वो शेयर होगा, मटेरियल शेयर किया जाएगा, क्योंकि आप तो ग्रुप में 40 स्टूडेंट्स हो, तो क्लास का वीडियो लेक्चर शेयर हो जाएगा, पीपीटी शेयर हो जाएगा, आप वर्कशीट असेसमेंट एग्जाम आप अटेंड करेंगे, और आप जो भी क्वेश्चंस दिया जाएगा आप आंसर करेंगे, आपको एवेलुएट किया जाएगा, ठीक है। तो दे एनेबल द एजुकेटर्स टू अरेंज कोर्सेस, शेयर मटेरियल्स, डिस्ट्रीब्यूट टेस्ट एंड मॉनिटर स्टूडेंट प्रोग्रेस, सब कुछ हो जाएगा यहां पर, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट है अरेंज कोर्सेस। आपका जो भी कंटेंट है, आप एक टीचर, गूगल क्लासरूम क्या है, 40 स्टूडेंट्स है, आप क्लासरूम अटेंड किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर क्लासरूम अटेंड करने के बाद आपका ग्रुप में जो आज का पूरा लाइव क्लास था उसका ऑनलाइन वीडियो मिल जाएगा, उसका पीपीटी मिल जाएगा, और उसके ऊपर वर्कशीट आपको दिया जाएगा, असेसमेंट दिया जाएगा, क्वेश्चंस पूछा जाएगा, तो आप आंसर करोगे, इंस्टेंटली उसको एवेलुएट किया जाएगा, टीचर चेक नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली वो एवेलुएट होगा, क्योंकि जो भी वर्कशीट है, असेसमेंट है, कि जो क्विज है, उसका क्वेश्चन सपोज आपका गूगल फॉर्म में कर दिया गया, किसमें कर दिया गया, गूगल फॉर्म में क्वेश्चन कर दिया गया और आंसर फीड हो गया, तो ऑटोमेटिकली उसका एवेलुएट हो जाएगा। तो ऐसे स्टूडेंट को हम मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ओके। कोर्सेज को अरेंज करता है, मटेरियल शेयर करता है, और जो टेस्ट मटेरियल्स डिस्ट्रीब्यूट होगा ग्रुप में, और मॉनिटर स्टूडेंट सक्सेस। अच्छा, आप देख लीजिए, इसमें दिया है पेजेस और वेबसाइट सच एज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ये है Moodle, Canvas, Blackboard are the core of online learning. They enable the educators to arrange courses, share materials, distribute tests, and monitor student success. So LMS platform allow for easy communication between students and teachers, making the learning process interactive and involving. आप अभी देखिए, सब जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स सब बीटेक कोर्स में देखिए, उसमें दोनों चीज, आप फिजिकल क्लास अटेंड करेंगे मगर फिर भी आपके पास लिंक आएगा, एक लिंक आएगा, जैसे गूगल फॉर्म में एक लिंक आएगा, सभी बच्चों जो वो सपोज 40 वो स्लॉट में 40 स्टूडेंट्स है, एक प्रोफेसर क्लास ले रहा है, वो पहले आपको दे देगा कि ये सब डिस्कशन होगा, आप गूगल फॉर्म में आ जाएगा, आप क्लिक कीजिए, डिटेल्स मिल जाएगा गूगल फॉर्म में कि क्या क्या डिस्कशन होगा, ठीक है। आपको क्लास का चाहे जूम है कि माइक्रोसॉफ्ट टीम है वो भी आ जाएगा, चाहे फिजिकल क्लास अटेंड करो, नो प्रॉब्लम।
फिजिकली कर सकते हो, नहीं तो आप फिजिकली अटेंड नहीं किया तो उसको माइक्रोसॉफ्ट टीम, जूम, गूगल मीट में कर सकते हो। और फिजिकल अटेंड करने के बाद उसका वीडियो लेक्चर शेयर हो जाएगा ग्रुप में, उसका पीपीटी शेयर हो जाएगा। सपोज प्रोफेसर चाहते हैं कि कुछ सपोज उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस वो आपको गूगल फॉर्म में वो शेयर हो जाएगा, और आप प्रोजेक्ट कर रहे हो तो गूगल डॉक्यूमेंट्स आपको दे दिया जाएगा, तो आपको ये असाइनमेंट करना है, आपको ये असाइनमेंट, तो ग्रुप प्रोजेक्ट, तो आप आपका पार्ट में करते रहो, वो गूगल डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया जाएगा, तो आप करते रहो, अल्टीमेटली आप देखेंगे सबका खत्म हो चुका है, साइमल्टेनियसली आप करोगे। तो ये सब चीज आ चुका है। तो एलएमएस सिस्टम बहुत जो गूगल क्लासरूम है, कानवा से मॉड्यूल है, बहुत हेल्पफुल है स्टूडेंट्स को टू मैनेज द कोर्सेस, डिस्ट्रीब्यूट मटेरियल्स, ओके, एंड मॉनिटर स्टूडेंट सक्सेस। ऑल दिस थिंग्स हैपन ड्यू टू एलएमएस। और यहां पर देख लीजिए डिफरेंट एलएमएस, इसको भी मैं प्रीवियस क्लास में बताया था। तो डिफरेंट एलएमएस और एक बार देख लीजिए, मॉड्यूल है, ओपन सोर्सेस एलएमएस, हाईली कस्टमाइजेबल, सपोर्ट्स ए वाइड रेंज ऑफ प्लगइन्स एंड इंटीग्रेशन, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशंस के लिए बहुत हेल्पफुल है। गूगल क्लासरूम है, गूगल कानवास है, कानवास में अप टू स्टैंडर्ड 12 हायर एजुकेशन, बिजनेस, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, पावरफुल कोर्सेस, एनालिटिक्स, मोबाइल ऐप फॉर ऑन द गो लर्निंग, स्कूलोजी है, ये सब प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। सोशल लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इजी कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, ट्रैक स्टूडेंट प्रोग्रेस इफेक्टिवली, वही अप टू स्टैंडर्ड 12 K-12 स्कूल्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स फॉर एजुकेशन, इसमें मीटिंग हो रहा है, इसमें सपोज आप प्रोजेक्ट होगा, उसमें सभी मेंबर ऐड करेंगे, प्रोजेक्ट कैसे डेवलप होगा, ओके, हाउ टू इनिशिएट बाय, इट मींस प्रोजेक्ट विद इन हाउ मच टाइम द प्रोजेक्ट शुड बी कंप्लीटेड, कि व्हाट टाइप ऑफ डाटा एक्चुअली रिक्वायर फॉर द प्रोजेक्ट, एक मीटिंग में डिस्कशन हो जाएगा, और उसमें जो मीटिंग में डिस्कशन हुआ उसका पीपीटी शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज के लिए बहुत हेल्पफुल है। ब्लैक बोर्ड लर्न, रोबस्ट एंड स्केलेबल, एडवांस्ड असेसमेंट एंड ग्रेट टूल्स, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड ट्रेनिंग, हायर एजुकेशन, लार्ज इंस्टीट्यूशंस के लिए हेल्पफुल है। D2L ब्राइट स्पेस, मॉडर्न एंड इजी टू नेविगेट, पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस, एक्सीलेंट एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग, तो अगेन हायर एजुकेशन, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग। बेसिक टैलेंट एलएमएस है, ऑब्जर्व है, थिंकिफिक है, ये सब एलएमएस है। इनका काम है कोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना और मटेरियल शेयर करना, और जो टेस्ट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, और स्टूडेंट्स को मॉनिटर करना, ठीक है। ये सब डिफरेंट एलएमएस प्लेटफॉर्म्स है, और स्कूल लेवल में बहुत पॉपुलर है। गूगल क्लासरूम है, कानवास है, स्कूलोजी है, मूडल है, ये बहुत पॉपुलर है, ठीक है। नेक्स्ट वन हम ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स देखेंगे। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स में जैसे कोर्सेरा है, खान एकेडमी है, यहां पर कुछ एग्जांपल दे दिया। कोर्सेरा, edX, Khan Academy are the platforms where students can find multiple online courses to learn independently. बहुत कुछ लर्निंग ऑनलाइन कोर्सेस मिल जाता है, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर देखेंगे। आप देखिए कोर्सेरा, edX, खान एकेडमी आर द प्लेटफॉर्म्स। देखिए खान एकेडमी में आप क्लास अटेंड कर सकते हो, लाइव क्लास होगा, लाइव क्लास अटेंड करोगे, वीडियो लेक्चर मिलेगा, पीपीटीज मिलेगा, ठीक है। तो आगे में से जैसे जी एग्जाम आप फेस करोगे, कि आप सपोज नीट एग्जाम फेस करोगे, ओके, उसके ऊपर पूरा आपको आइडिया मिलेगा, क्वेश्चंस मिलेगा, आंसर्स मिलेगा। खान एकेडमी बहुत बढ़िया चल रहा है अभी। आर द प्लेटफॉर्म्स where students can find multiple online courses to learn independently. These platforms also assist students to get certifications and find new skills. ठीक है। Such platforms usually collaborate with the best universities. वो बेस्ट यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेट किए हैं, ऑफरिंग क्वालिटी एजुकेशन टू पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उसमें हम देखिए यहां पर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स में आपको इसके ऊपर बता चुका हूं पहले, ठीक है। पहले इसको इमेज देख के बता चुका हूं। तो उनका काम वही है, यहां पर ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑनलाइन इट मींस कोर्सेस मिल जाता है। जैसे आप देखिए कोर्सेरा जैसे हायर एजुकेशन में बहुत हेल्पफुल है, ऑनलाइन कोर्सेस मिल जाता है। खान एकेडमी बहुत पॉपुलर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, मोबाइल लर्निंग टूल्स के ऊपर देखेंगे। मोबाइल लर्निंग टूल्स में डुओलिंगो फॉर लैंग्वेज लर्निंग, क्विजलेट है फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ फ्लैश कार्ड्स, गूगल क्लासरूम फॉर असाइनमेंट मैनेजमेंट, तो ये सब आ जाता है मोबाइल लर्निंग टूल्स। मोबाइल यूज करके आप ये सब टूल्स को यूज कर सकते हो। देखिए उसके ऊपर मोबाइल लर्निंग टूल्स देखिए, एक है गूगल क्लासरूम,
गूगल क्लासरूम आप मोबाइल में आप लॉग इन करो, आपको कंटेंट के ऊपर वीडियो लेक्चर, आपको कंटेंट के ऊपर सपोज आपका पीपीटी, आपको कोई एग्जाम सपोज आपका गूगल फॉर्म से आ रहे आप आंसर कर दो, और गूगल डॉक्यूमेंट से आप कोई प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, आपको स्पेसिफिक पार्ट दिया गया है और गूगल डॉक्यूमेंट में वो पार्ट को आप कंप्लीट करो। तो ये सब मोबाइल को यूज करके आप कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, क्विजलेट में आप देखिए एक फ्लैश कार्ड से एक साइड में क्वेश्चन होगा, फ्लैश होकर आएगा और एक साइड में आंसर आएगा, तो क्विजलेट है। खान एकेडमी है, खान एकेडमी बहुत मैथ साइंस एंड बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्टेम एजुकेशन के लिए। खान एकेडमी स्टेम एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। और नेक्स्ट वन डुओलिंगो, एक लैंग्वेज के ऊपर आ रहा है, फन एंड इंटरेक्टिव ऐप टू लर्न लैंग्वेजेस थ्रू बाइट साइज लेसन्स एंड गेम्स, लैंग्वेज लर्नर्स डुओलिंगो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरनोट है, स्टूडेंट, टीचर्स एंड प्रोफेशनल के लिए, हेल्प्स टू यू टेक नोट्स, ऑर्गेनाइज आइडियाज, सेव वेब पेजेस एंड एक्सेस देम फ्रॉम एनीवेयर। गूगल ड्राइव है, गूगल उसमें स्पेस में आप रख सकते हो, गूगल ड्राइव में स्टोर, एक्सेस एंड शेयर फाइल्स, तो इसी में आप गूगल ड्राइव में रख के आप शेयर कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स शेयर कर सकते हो, एंड वीडियो सिक्योरली फ्रॉम योर मोबाइल डिवाइस, ओके। जूम है, आप लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो, मीटिंग अटेंड कर सकते हो, उसमें जो मटेरियल्स जो शेयर होगा इट मींस आप उसको एक्सेस कर सकते हो। पैडलेट है फॉर स्टूडेंट्स टीचर्स, कानवा है डिजाइनिंग के लिए, डिजाइन प्रेजेंटेशंस, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। डिजाइन प्रेजेंटेशंस, पोस्टर्स, इंफोग्राफिक्स एंड लर्निंग मटेरियल्स इजीली ऑन मोबाइल, बेस्ट फॉर स्टूडेंट टीचर्स। और विकिपीडिया है जिसमें क्विकली फाइंड रिलायबल इंफॉर्मेशन ऑन ऑलमोस्ट एनी टॉपिक फॉर लर्निंग एंड रिसर्च, ठीक है। तो ये बहुत कुछ मोबाइल, ये सब मोबाइल यूज करके आप ये प्लेटफॉर्म, ये सब टूल्स को यूज कर सकते हो। चलो नेक्स्ट वन, AR VR के ऊपर तो प्रीवियस में बताया था, 3D मॉडल्स। तो विद VR एंड AR स्टूडेंट्स आर एबल टू इंटरेक्ट विद 3D मॉडल्स एंड कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक फिनोमेना द टेक्स्ट बुक सिंपली कैन नॉट रिप्रोड्यूस। टेक्स्ट बुक में ओनली पिक्चर है, आप एक हार्ट डायग्राम देख लिया कि सोलर सिस्टम को देख लिया, ओनली पिक्चर को देख लिया, मगर आप VR में जाएंगे, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट होगा और उसका जो भी इक्विपमेंट्स इंस्टॉल होगा, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट, वर्चुअल लैब है, उसके अंदर जाइए, उसका VR का गॉगल्स लगाइए और आप कोई भी रियल एक्सपीरियंस लीजिए। जैसे सर्जरी हो रहा है, हार्ट सर्जरी हो रहा है, कि आप सोलर सिस्टम के अंदर हो, कि सर्कुलेटरी सिस्टम को आप देख रहे हो, तो रियल एक्सपीरियंस, आप रियल वर्ल्ड में नहीं हो मगर रियल एक्सपीरियंस ले रहे हो, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए बेस्ट है, आप पूरा कंप्लीट नॉलेज एक्वायर कर रहे हो। और वैसा ही आप मैं बताया था जो ऑगमेंटेड रियलिटी है, ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है, डिफरेंट टाइप का आपस आ रहा है अभी, तो आप बुक में पिक्चर है वो आपको यूज कीजिए आप मोबाइल में, और जो बुक में पिक्चर है उसके ऊपर मोबाइल को लीजिए, कि AR का ग्लास भी मिल रहा है, AR का ग्लास मिल रहा है, वो ग्लास को लीजिए पिक्चर के ऊपर, बुक में जो पिक्चर है आप देखेंगे उसका 3D मॉडल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर थोड़ा हम देख लेंगे। जो ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी टूल्स हैव स्टार्टेड टू चेंज द वे स्टूडेंट्स डील विथ एजुकेशनल मटेरियल्स, क्योंकि अभी AR लैब है, VR लैब है, ओके, तो उसमें आप 3D मॉडल्स को देख सकते हो। साइट्स सच एज गूगल एक्सपेडिशंस एंड ऑकुलस VR ऑफर इमर्सिव, देखिए ये सब है, sites such as Google Expeditions and Oculus VR offer immersive learning solutions like fields like history, science। जैसे आप VR में वर्चुअल जो रियलिटी है, इसमें वर्चुअल लैब के अंदर, जैसे आप ताजमहल के अंदर फील्ड ट्रिप किया है, पूरा ताजमहल अंदर के हो, रियल एक्सपीरियंस, क्योंकि वहां पर एक आपको VR ग्लास लगाना, VR का एक गगल्स आता है लगाना है, ओके, हेड गियर टाइप, तो लगाने के बाद आप जैसे फील्ड ट्रिप में कि कोई अब्रॉड में कोई जो सिटी है, कोई हेरिटेज साइट है, कोई मॉन्यूमेंट साइट में आप पूरा रियली देख रहे हो, मगर आप रियल वर्ल्ड में, वर्चुअल वर्ल्ड में हो, मगर रियल एक्सपीरियंस ले रहे हो, ओके। स्टूडेंट्स आर एबल टू with VR and AR students are able to interact with 3D models and complex scientific phenomena the textbook simply cannot reproduce। इसके ऊपर में डायग्राम्स के साथ में प्रीवियस जो मेरा वीडियो था उसमें मैं डिस्कस किया था। चलो नेक्स्ट वन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम देखेंगे, अडाप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, स्पेसिफिक लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। तो AI इज इंक्रीजिंगली बीइंग इंटीग्रेटेड इन educational technologies to provide
पर्सनल लर्निंग एक्सपीरियंसेस। पर्सनल क्या है, आप देखिए अभी जो अडेप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म से स्पेसिफिक है, जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं, जो ये एक है ड्रीम बॉक्स है, ये स्पेशली मैथ्स के ऊपर है। आप उसमें लॉग इन करो, उसमें आप वर्चुअल क्लास अटेंड करो, इंटरेक्ट विद द टीचर्स, अटेंड द क्वेश्चंस, आपको वीडियो लेक्चर मिल गया, आपको पीपीटी मिल गया, ठीक है, और आप क्लास अटेंड किया, ठीक है, फिर आपको क्वेश्चंस, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, फिर आप क्वेश्चंस का आंसर करोगे, उसका चेक होगा क्या कितना करेक्ट है कितना इनकरेक्ट है, उसी में डिटेक्ट होगा कि मैथ्स का कौन सा चैप्टर में आप वीक हो, फिर उसी के ऊपर फिर लाइव एग्जांपल्स के साथ फिर आप लर्न करोगे, फिर आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो ऐसे करके अल्टीमेटली आपको फीडबैक मिलेगा, और जो कंटेंट के ऊपर आप वीक थे तो वो कंटेंट के ऊपर आप स्ट्रांग हो जाएंगे। तो ये जो पर्सनली एक एक स्टूडेंट्स को यहां पर क्या है एनालाइज किया जाएगा, पर्सनल ग्रोथ को, पर्सनली इट मींस इंडिविजुअल स्टूडेंट का ग्रोथ को असेस किया जाएगा। तो इस तरीके का जो अडेप्टिव प्लेटफॉर्म है, ये सब एआई अडेप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म से, उसके ऊपर आप देख लीजिए यहां पर थोड़ा थियोरिटिकली, एआई इज इंक्रीजिंगली बीइंग इंटीग्रेटेड इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज टू प्रोवाइड, मेन है पर्सनल लर्निंग एक्सपीरियंसेस। तो इंटेलिजेंट अडेप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म्स are able to evaluate student performances and adjust content to cater for their individual needs. AI tools such as chatbots may also provide real-time feedback and help with administrative tasks so that teachers can concentrate more on teaching. आप देखिए अभी चैटबॉट, आप स्कूल वेबसाइट में जाइए, आप स्कूल वेबसाइट में आप जाइए, आपको चैटबॉट मिलेगा। आप देखिए, आप चैटबॉट, आप कोई भी, अभी देखिए फ्लिपकार्ट, अमेजन, से चैटबॉट है, आप चैटबॉट को पूछेंगे कि वेयर इज माय ऑर्डर, मेरा ऑर्डर कहां पर है, क्यों मेरा ऑर्डर इतना डिले हुआ, वो सब आंसर देता जाएगा। क्योंकि ये जो है, जो ये सब है, ये सब नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पूरा मैसिव डाटा उनको दे दिया गया है। पूरा स्कूल वेबसाइट में चैटबॉट है, स्कूल का ऑल द डाटा जो उसको दे दिया गया, ठीक है, चाहे एकेडमिक्स है, उसका करिकुलम है, आपका एकेडमिक कैलेंडर है, आपका इंस्टीट्यूशनल प्लान है, आपका पेडागोजिकल प्लान है, आपका करिकुलर एक्टिविटीज है, को करिकुलर एक्टिविटीज है, उसको सब दे दिया गया। एडमिनिस्ट्रेशन, सपोज कि कब आप फी पेड करोगे, कैसे फी पेड करना है, तो डिटेल से, तो चैटबॉट को जो पूछोगे वो आपको आंसर देगा। तो इसमें टीचर्स ओनली कंसंट्रेट करेंगे टीचिंग में। तो वेबसाइट में जाइए, चैटबॉट को पूछिए कि व्हाट इज द डेडलाइन ऑफ द पेमेंट ऑफ फी, वो बताएगा क्या डेडलाइन है, वो डिटेल्स बताएगा कि क्या है एकेडमिक कैलेंडर बताइए, क्या एग्जामिनेशन का क्या कैलेंडर बताइए, क्या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कब कब होगा, वो चैटबॉट सब बताए, क्योंकि उसको मैसिव डाटा। चैटबॉट क्या है, कोई हम क्या करेंगे, कोई कंप्यूटर कंसल्टेंसी का हेल्प लिया, उसको पूरा डाटा दे दिया, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है, एकेडमिक के ऊपर है, सब डाटा दे दिया, ठीक है, और एल्गोरिथम है, और जो स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स है वो यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करता है, और उसमें आप जो क्वेश्चन पूछोगे वो आपको आंसर देगा। तो इसमें टीचर्स को क्या है, ओनली कंसंट्रेट करना है टीचिंग में, वो ही आंसर नहीं देंगे। आप वेबसाइट में, स्कूल वेबसाइट में जाकर चैटबॉट को पूछिए, जैसे अभी आप आईआरसीटीसी में जाइए, चैटबॉट को पूछिए जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। आप कोई प्लेटफॉर्म, जैसे फ्लिपकार्ट में आप ऑर्डर किया है कोई प्रोडक्ट, आप उसको चैटबॉट को पूछिए कि कहां पर अभी प्रोडक्ट है और कब डिलीवरी होगा, क्यों डिले हुआ है, यदि कैंसिल किया गया रिफंड कब होगा, वो सब आपको आंसर देगा, ठीक है। तो जैसे ये सब एआई आ गया, जैसे चैट जीपीटी आ गया, जेमिनाई आ गया, आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे वो आपको आंसर देगा, मगर हाँ, आपको ऑथेंटिक चेक करना है कि आप वो जो आंसर दे रहा है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं, ठीक है। तो अडेप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म, स्पेशल प्लेटफॉर्म्स, जो अडेप्टिव, ये सब एआई प्लेटफॉर्म्स है। जो एआई प्लेटफॉर्म्स क्या है, इसका मेन कारण क्या है ना, ये पर्सनली इंडिविजुअल स्टूडेंट को ऑब्जर्व करते हैं और उनका ग्रोथ को असेस करते हैं, ओके, पर्सनली। जैसे कोई जैसे आपका खान एकेडमी है, खान एकेडमी मैथ साइंस के ऊपर उसका क्लास हो रहा है, और पर्सनली वो ऑब्जर्व कर रहा है, और एग्जामिनेशन हो रहा है, और एग्जामिनेशन होने के बाद किस एरिया में आपका वीक है वो डिटेक्ट कर रहा है, और उसी के हिसाब से फीडबैक दिया जा रहा है। तो इसमें क्या है, अडेप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म्स में मेन पर्पज ऑब्जेक्टिव है जो पर्सनलाइज्ड लर्निंग। आप एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को असेस किया जा रहा है,
और वो कैसे ग्रो करेगा, जिस कंटेंट एरिया में वो वीक है उसमें कैसे ग्रो करेगा, और मोर एग्जांपल्स और मोर सिंपल टू कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस उसके लिए फ्रेम किया जा रहा है। तो ये सब आ चुका है अडैप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। खान एकेडमी है, ड्रीम बॉक्स है, मैं बताया था ड्रीम बॉक्स जो है मेनली मैथ्स के ऊपर है, अलेक्स है मिडिल स्कूल हाई स्कूल कॉलेज के लिए है, और आई एक्सेल है अप टू स्टैंडर्ड 12, स्मार्ट स्पारो है, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। अडैप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट डाइवर्स पर्सनलाइज्ड एंड एंगेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस, हायर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल्स। इसमें क्या है, की फीचर्स है, पर्सनलाइज लर्निंग है, इंटरेक्टिव कंटेंट है, एडवांस्ड एनालिटिक्स है। जैसे आप देखेंगे ड्रीम बॉक्स रियल टाइम अडेप्टेशन, एंगेजिंग गेम्स, डिटेल्ड रिपोर्ट्स। सेंचुरी टेक है, मैथ स्पेस है, न्यूटन है, क्विल है, लेक्सिया कोर्स है, ये सब अडेप्टिव लर्निंग स्पेशल प्लेटफॉर्म जो इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो वही है। ये क्या है, ये सब प्लेटफॉर्म्स पर्सनली एक्चुअली ऑब्जर्व करते हैं लर्नर्स को, और उनको जिस कंटेंट एरिया में वो वीक है उसी एरिया में कैसे वो ग्रो करेंगे, उनको रेगुलरली फीडबैक, क्वेश्चंस और मटेरियल्स वो प्रोवाइड करता जा रहा है। किस तरीके का प्लेटफॉर्म, ओके, स्मार्ट प्लेटफॉर्म्स दैट पर्सनलाइज लर्निंग फॉर एवरी स्टूडेंट। ठीक है, तो अडैप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म्स देखिए यूज डाटा एंड एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू अंडरस्टैंड ईच लर्नर। तो ईच लर्नर को वो अंडरस्टैंड करता है डाटा को यूज करके, और एआई को यूज करके वो ईच स्टूडेंट को अंडरस्टैंड कर रहा है और डिलीवर द राइट कंटेंट, उसको राइट कंटेंट दे रहा है एट द राइट टाइम इन द राइट वे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है अडैप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। ओके, नेक्स्ट वन देखिए गैमिफिकेशन से, गैमिफिकेशन एम्प्लॉयज सच एलिमेंट्स सच एज पॉइंट्स, बैजेस एंड लीडर बोर्ड्स फ्रॉम गेम्स टू इन्वॉल्व द स्टूडेंट्स एंड इंप्रूव देयर लर्निंग प्रोसेस। आप देखिए काहूट, देखिए काहूट में जो क्विज होगा, आप जब आंसर देंगे आपको पॉइंट्स मिलेगा, इतना आंसर देने के आपका करेक्ट इतना आंसर होगा तो आपको बैज मिलेगा। उसके लीडर बोर्ड्स में क्या है, आपका पोजीशन क्या है, ये सब आ जाएगा गैमिफिकेशन। तो इसमें इंटरेस्टिंग होता है, एक एक्साइटिंग होता है। ठीक है, इन्वॉल्व द स्टूडेंट्स एंड इंप्रूव देयर लर्निंग प्रोसेस, उसके ऊपर देखेंगे गैमिफिकेशन के ऊपर। देखिए गैमिफिकेशन इन एजुकेशन एम्प्लॉयज सच एलिमेंट्स एज पॉइंट्स, बैजेस एंड लीडर बोर्ड्स फ्रॉम गेम्स टू इन्वॉल्व द स्टूडेंट्स एंड इंप्रूव देयर लर्निंग प्रोसेस। क्या है, आपको पॉइंट्स मिलेगा, आप जब आंसर देंगे इतना पॉइंट्स मिलेगा, और इतना पॉइंट्स होने के बाद आपको बैज मिलेगा, और लीडर बोर्ड्स में आपका क्या पोजीशन है। तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, और आपको अल्टीमेटली रिवॉर्ड दिया जाएगा पोजीशन के हिसाब से। तो ये जो काहूट है, क्लास क्राफ्ट है, ये गैमिफिकेशन माने इट मींस गोटे फन मैनर आपको क्या है, आपको इन्वॉल्व होना है। ओके, ये यहां पर जो लर्निंग होता है एक फन मैनर में और इन एंजॉयबल मैनर, एक्चुअली द चिल्ड्रंस एक्चुअली एंगेज देमसेल्व्स। अप्लाई गैमिफाइड मेथड्स टू मेक लर्निंग एक्साइटिंग, इंटरेक्टिव, एंगेजमेंट एंड इंट्रिग इंक्लूडेड. You can also read on game based learning to understand more of gamification and its applications. अच्छा, इसमें देखिए पॉइंट्स जो है, आप जैसे आंसर करेंगे आपको पॉइंट्स मिलेगा, इतना पॉइंट मिलने के बाद आपको बैज मिलेगा, लीडर बोर्ड्स बोल रहा है कि आपका पोजीशन क्या है, और आप चैलेंजेस आएगा, स्टूडेंट्स कंप्लीट डिफरेंट टास्क और लेवल्स, और अल्टीमेटली आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो ये फन बेसिस में एक्चुअली स्टूडेंट्स लर्न करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमिफिकेशन देखिए, इसमें क्या क्या एलिमेंट्स है, पॉइंट्स में बताया, पॉइंट आपको आंसर देने में 10 पॉइंट मिलेगा, बैजेस मिलेगा, आपको सपोज इतना पॉइंट मिलने के बाद आपको बैज मिलेगा, लीडर बोर्ड्स में आपका पोजीशन क्या है, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन, आपका लेवल्स क्या है, आप चैलेंज क्रिएट स्पेसिफिक टास्क और चैलेंजेस दैट लर्नर्स मस्ट कंप्लीट, अचीवमेंट्स है, ओके, रिवॉर्ड्स मिलेगा, स्टोरी टेलिंग है, आपका प्रोग्रेस बार है। तो ये सब जो गेम एलिमेंट्स है, देखिए यहां पर दे दिया कि गेम एलिमेंट्स एंड मैकेनिक्स दैट मेक लर्निंग एंगेजिंग एंड मोटिवेटिंग। ओके, तो यहां पर देखिए लास्ट में दे दिया गया गैमिफिकेशन मेक्स लर्निंग फन, एंगेजिंग एंड इफेक्टिव बाय यूजिंग गेम एलिमेंट्स इन एजुकेशन, और सबसे काहूट, क्लास क्राफ्ट, ये सब है। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखिए गैमिफिकेशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काहूट है, बहुत पॉपुलर है, रीड अलोंग है, ओके, माइनक्राफ्ट है, ओके, गूगल, देखिए यहां पर काहूट है, गूगल रीड अलोंग है, गूगल रीड अलोंग, माइनक्राफ्ट एजुकेशन एडिशन है, तब एलुसिडाट है, डुओलिंगो है, ब्रेनस्केप है। दीज आर द डिफरेंट एक्चुअली गैमिफिकेशन
ओके, प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इन एजुकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट काहूट है और आपका क्लास क्राफ्ट है, डुओलिंगो है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन। सेवेंथ वन, क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस। Cloud tools enable the students and teachers to share and work on the documents online and in real time, making communication and teamwork easy। जैसे आपका क्लाउड बेस्ड में आपका गूगल ड्राइव आता है, जैसे आप देखा होगा, मैं एक एग्जांपल सिंपल, गूगल ड्राइव। तो गूगल ड्राइव का लिंक है, आप गूगल ड्राइव लिंक को शेयर कर सकते हो, सबका मेल को ऐड करके आप गूगल ड्राइव का लिंक शेयर करोगे, सबके पास चला जाएगा। और उसमें सपोज आप गूगल ड्राइव में आप गूगल डॉक्स कुछ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आप दे दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। और गूगल डॉक्यूमेंट्स में सपोज प्रोजेक्ट है, सपोज तो प्रोजेक्ट्स में 20 मेंबर्स है, आप उसका लिंक बना दीजिए और वो डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर दीजिए। सपोज मेरा रोल है प्रोजेक्ट में एक स्पेसिफिक पार्ट है, सपोज मेरा पार्ट इलेक्ट्रिफिकेशन रिलेटेड है, किसका वहां पर मैकेनिकल पार्ट है, किसका सॉफ्टवेयर पार्ट है, वो करते रहेंगे और अल्टीमेटली वो चेंज होता जाएगा। और जैसे गूगल ड्राइव में आप सपोज आप कोई गूगल फॉर्म है, तो गूगल फॉर्म को आप शेयर कर सकते हो ड्राइव में। तो ड्राइव में ये सब क्या है, स्टोर करेगा, मैनेज करेगा, उसको शेयर करेगा। ये सब क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन से, ठीक है। और रियल टाइम मेकिंग कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क इजी। रियल टाइम माने पर एक्यूरेट टाइम के हिसाब से वो शेयर हो जाएगा। आप पर्टिकुलरली जो टाइमिंग के हिसाब से वो सबके पास शेयर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इतना टाइम के अंदर सबको जो प्रोजेक्ट का मेंबर है वो सब खत्म करेंगे, ठीक है। तो उसको थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। द यूज ऑफ क्लाउड टेक्नोलॉजी सच एज गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स हैज बिकम ए नेसेसिटी इन एजुकेशन। क्लाउड टूल्स enable the students and teachers to share and work on the documents। आप डॉक्यूमेंट्स को शेयर करना है, ओके उसमें इसमें जो क्लाउड स्पेस में आप स्टोर कीजिए, उसको मैनेज कीजिए और शेयर कर दीजिए डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन एंड इन रियल टाइम, मेकिंग कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क इजी, ठीक है। सपोज देखिए यहां पर एक एग्जांपल में दे दिया। सपोज ए मैथमेटिक्स टीचर क्रिएट्स ए वर्कशीट, एक मैथ्स टीचर ने वर्कशीट क्रिएट किया गूगल डॉक्स में, गूगल डॉक्यूमेंट्स में, और उसको सेव कर दिया गूगल ड्राइव में, ठीक है। मैथमेटिक्स टीचर ने एक वर्कशीट क्रिएट किया गूगल डॉक्यूमेंट्स में और उसको सेव किया गूगल ड्राइव में। फिर वो टीचर अपलोड द वर्कशीट्स टू गूगल ड्राइव में वो वर्कशीट्स को अपलोड किया। तो स्टूडेंट्स ओपन द वर्कशीट ऑनलाइन यूजिंग देयर फोन्स और कंप्यूटर्स, ओके। जब गूगल ड्राइव में वो चला जाएगा, लिंक आ जाएगा, तो वो लिंक को शेयर कर दीजिए, तो स्टूडेंट्स उसको ओपन करेंगे फोन्स और कंप्यूटर्स में। और वो जो डॉक्यूमेंट गूगल डॉक्यूमेंट शेयर किया गया किसमें, लिंक गूगल ड्राइव से, फास्ट गूगल ड्राइव को आया, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हुआ, टीचर ने अपलोड कर दिया गूगल ड्राइव में, वो लिंक को कन्वर्ट हो गया और लिंक ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएगा क्योंकि सबका मेल आईडी ऐड है, शेयर हो गया मेल। जैसे वो डॉक्यूमेंट शेयर हो गया तो स्टूडेंट्स फोन्स और कंप्यूटर्स में उसको देखेंगे और वो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर काम करेंगे। तो टीचर्स एंड स्टूडेंट्स कैन कोलैबोरेट एंड शेयर इन्फॉर्मेशन, तो ऑटोमेटिकली रियल टाइम में चेंजेस होता जाएगा, चेंजेस कैन बी सीन इन रियल टाइम, सो एवरीवन कैन वर्क विद द लेटेस्ट वर्जन, सो ऑल वन वर्क कर रहे हैं, जिसका जो पार्ट है वो कर रहा है। तो रियल टाइम मीन द चेंजेस मेड बाय, देखिए रियल टाइम क्या है, सपोज वही डॉक्यूमेंट्स में मेरा एक स्पेसिफिक पार्ट है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट है, मेरा पार्ट को मैं कर रहा हूं और कोई स्टूडेंट उसी टाइम में और एक पार्ट को कर रहा है, तो चेंजेस मेड बाय वन पर्सन कैन बी सीन बाय अदर। मैं जो चेंज कर रहा हूं अदर मेंबर उसको देख रहा है इमीडिएटली, टीचर्स भी देख रहा है जो वर्कशीट शेयर किया। तो ये है रियल टाइम, चेंजेस मेड बाय वन पर्सन कैन बी सीन बाय अदर्स इमीडिएटली। तो यहां पर एक एग्जांपल दे दिया, देखिए ये टीचर एंड 3 स्टूडेंट्स आर एडिटिंग द सेम गूगल डॉक्स प्रोजेक्ट, सेम गूगल डॉक प्रोजेक्ट को एडिट कर रहे हैं। व्हेन वन स्टूडेंट एड्स ए पैराग्राफ, एक स्टूडेंट ने पैराग्राफ ऐड किया, द टीचर एंड अदर स्टूडेंट्स कैन सी द चेंज इमीडिएटली, ठीक है। एक टीचर है, 3 स्टूडेंट्स है, यदि एक स्टूडेंट ने क्या किया, एक पैराग्राफ ऐड किया, तो ऑटोमेटिकली टीचर एंड अदर 2 स्टूडेंट्स इमीडिएटली दे कैन सी। तो इसमें क्या है, इसमें वर्कशीट प्रिपेयर हुआ, वर्कशीट को गूगल ड्राइव में अपलोड कर दिया गया, गूगल ड्राइव से वो जो गूगल डॉक्यूमेंट्स वो लिंक के आकर में सबके पास चला गया, आप लिंक क्लिक करेंगे वो ओपन होगा, आप आपका काम कीजिए, आपका जो असाइनमेंट है, मेरा जो असाइनमेंट है मैं कर रहा हूं तो अदर मेंबर्स देख रहे हैं, अदर मेंबर्स जो उनका जो असाइनमेंट कर रहे हैं मैं देख रहा हूं, ठीक है।
तो इसमें जो एग्जाम्पल्स है, वन ड्राइव है, गूगल ड्राइव है, आई क्लाउड है, ड्रॉप बॉक्स है, अमेजन वर्क डॉक्स है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करना, मैनेज करना, शेयर करना, और साइमल्टेनियसली वो उसके ऊपर वर्क होगा, ठीक है। और अल्टीमेटली जब टाइम खत्म हो जाएगा वो सबका वर्क खत्म हो चुका है और सब उसको देख पाएंगे कि ये फाइनल है, फाइनल प्रोजेक्ट खत्म हो गया, ठीक है। और लास्ट वन देखेंगे, डाटा एनालिटिक्स। देखिए, एजुकेशनल डाटा एनालिटिक टूल्स फैसिलिटेट इंस्टीट्यूशंस टू मॉनिटर एंड एनालाइज स्टूडेंट परफॉर्मेंस। ये जो डाटा एनालिटिक्स है ये बेसिकली स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस को एनालाइज कर रहा है, ठीक है। स्टूडेंट्स का जो परफॉर्मेंस मॉनिटर एंड एनालाइज, इसका देखिए मॉनिटर एंड एनालाइज स्टूडेंट परफॉर्मेंस, ओके, डाटा एनालिटिक्स का काम है। आप देखिए यहाँ पर एजुकेशनल डाटा एनालिटिक्स टूल्स टू फैसिलिटेट इंस्टीट्यूशंस टू मॉनिटर एंड एनालाइज स्टूडेंट परफॉर्मेंस। स्टूडेंट जो एजुकेशनल डाटा एनालिटिक्स जो टूल्स है उसमें इंस्टीट्यूशन इंडिविजुअली स्टूडेंट को मॉनिटर कर सकता है और स्टूडेंट परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकता है, एनालाइज कर सकता है, और जो भी लर्निंग गैप्स है दोज टूल्स फाइंड लर्निंग गैप्स एंड प्रोवाइड हिंट्स अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग एंड ऑर्गेनाइज पर्सनलाइज इंटरवेंशंस फॉर स्टूडेंट सक्सेस, ठीक है। उसमें आप देख लीजिए सिंपल एग्जाम्पल, सपोज ए स्कूल यूजेस एन ऑनलाइन मैथमेटिक्स लर्निंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। इसमें द सिस्टम एनालाइज स्टूडेंट्स क्विज रिजल्ट, 9 स्टूडेंट है 90% परफॉर्म वेल, स्टूडेंट भी 65% नीड सम प्रैक्टिस, स्टूडेंट सी 35% हैज डिफिकल्टी विथ फ्रैक्शंस। देखिए इसमें लर्निंग गैप आ गया। तो ये जो डाटा एनालिटिक्स टूल है ये स्टूडेंट को मॉनिटर करेगा, ठीक है, पूरा मॉनिटरिंग में क्या पोजीशन है और उसका लर्निंग गैप को डिटेक्ट करेगा। लास्ट में देखिए हैज डिफिकल्टी विथ फ्रैक्शंस, तो उससे लर्निंग गैप जब डिटेक्ट होगा फिर वो चाइल्ड को एक्चुअली और उसी एरिया में उसको और सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो उसमें क्या है ना, द टीचर कैन आइडेंटिफाई द स्टूडेंट सी हैज ए लर्निंग गैप इन फ्रैक्शंस एंड प्रोवाइड एक्स्ट्रा वर्कशीट्स, वीडियोस और इंडिविजुअल गाइडेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डाटा एनालिटिक्स टूल स्टूडेंट को मॉनिटर करना और उसका परफॉर्मेंस को एनालाइज करना, उसका लर्निंग गैप को डिटेक्ट करना और फिर उसको उस तरीके से टीचर्स उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, वो एरिया में वो कैसे डेवलप करेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए डाटा एनालिटिक्स टूल्स का एग्जाम्पल पाइथन है, ठीक है, पाइथन है, एसक्यूएल है, एक्सेल है, ठीक है, टैब्ल्यू है, बिग क्वेरी है, ओके, पावर बाय है, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है पाइथन, एसक्यूएल, एक्सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टैब्ल्यू, बिग क्वेरी और पावर बाय, ये सब ऑल दीज आर डाटा एनालिटिक्स टूल्स। स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, एनालाइज करना, लर्निंग गैप को डिटेक्ट करना और उसको देखकर टीचर्स ने उसको प्रोवाइडिंग सपोर्ट और मोर वीडियो लेक्चर्स और मोर लर्निंग मटेरियल्स और मोर वर्कशीट्स, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन इसमें देखिए गूगल वर्क स्पेस के ऊपर मैं दिखा रहा हूँ, जैसे क्या है, जीमेल है, गूगल मीट है, गूगल कैलेंडर है, गूगल डॉक्यूमेंट स्लाइड्स एंड सीट्स है, गूगल ड्राइव है, गूगल साइट्स है, इजीली क्रिएशन ऑफ वेबसाइट्स, ये गूगल साइट्स जो है इजीली क्रिएशन ऑफ वेबसाइट्स, गूगल फॉर्म्स है, क्रिएटिंग क्विजेस, टेस्ट एंड सर्वेज, गूगल क्लासरूम है, डिजिटल टीचिंग प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, गूगल चैट है, इंस्टेंट कम्युनिकेशन वाया डायरेक्ट मैसेजिंग, जीमेल सेंड एंड रिसीव सिक्योर मेल्स, मीट तो जानते हो रियलाइजेशन ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंस, गूगल कैलेंडर है, शेड्यूल है, मीटिंग का शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट, और गूगल डॉक्यूमेंट्स तो आप जानते हो उसमें स्टोर होगा, मैनेज होगा और शेयर होगा, क्रिएट एंड शेयर डॉक्यूमेंट्स, प्रेजेंटेशंस एंड स्प्रेडशीट्स, ड्राइव सिक्योरली स्टोर शेयर एंड एक्सेस फाइल्स इन वन प्लेस, गूगल साइट्स हो मेनली वेबसाइट क्रिएट करना। तो ये सब इसके ऊपर आप थोड़ा आइडिया ले जाइए, गूगल वर्क स्पेस, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इन व्हिच डिकेड वेयर पर्सनल कंप्यूटर्स फर्स्ट वाइडली इंट्रोड्यूस्ड इनटू क्लासरूम्स फॉर बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग एंड एजुकेशनल गेम्स? 70s, 80s, 90s, 2000, इट इज 1980s। उसमें जो कंप्यूटर्स फर्स्ट टाइम क्लासरूम में एंट्री किया, उसमें जो मेन जो काम था बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग और एजुकेशनल गेम्स, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2,
which of the following is primarily classified as a learning management system? ओके LMS, जैसे स्टूडेंट्स को मैनेज करना, क्लास को मैनेज करना और कोर्सेज को मैनेज करना, मटेरियल शेयर करना, ओके, और जो टेस्ट आइटम्स है उसको शेयर करना, और इट मीन्स स्टूडेंट्स को मॉनिटर करना, तो गूगल क्लासरूम जैसा है. डुओलिंगो, ऑकुलस VR, कानवास, काहुट. यहाँ पर कानवास है, जो ऑप्शन सी इज द, ये LMS है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. ओके, जो क्लासरूम में जो भी आप एब्सेंट है कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लास में जो भी डिस्कशन हुआ उसको वीडियो लेक्चर शेयर हो जाएगा, PPT शेयर हो जाएगा, वर्कशीट असाइनमेंट शेयर हो जाएगा, और गूगल डॉक्यूमेंट, सपोज आपका गूगल फॉर्म में टीचर टेस्ट लेना चाहते हैं वो शेयर हो जाएगा. ठीक है, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा क्योंकि यू आर द वन ऑफ द मेंबर ऑफ द गूगल क्लासरूम. सो इसमें ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3, what is the primary pedagogical benefit of integrating augmented reality and virtual reality in classrooms? Automating administrative grading tasks, replacing the need for certified educators, providing immersive 3D visualization of complex phenomena, storing student documents on remote servers. Option C, providing immersive 3D visualization of complex phenomena. Option C is the correct answer. Question number 4, अडाप्टिव लर्निंग, जो AI प्लेटफॉर्म्स है, अडाप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म्स पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्राइमरली सपोर्ट एजुकेशन बाय enforcing identical pacing for every student, adjusting instructional content dynamically to meet individual student needs, eliminating the use of cloud-based storage, restricting access to open source e-learning repositories. Adjusting, option B, इंस्ट्रक्शनल कंटेंट डायनेमिकली टू मीट इंडिविजुअल स्टूडेंट नीड्स. इसको मैं डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 5, प्लेटफॉर्म्स लाइक काहुट एंड क्लासक्राफ्ट incorporate badges, points and leaderboards. This educational strategy is known as gamification. Option A is the correct answer. ठीक है, इसको भी डिस्कस कर चुका हूं. क्वेश्चन नंबर 6, which set of tools represents cloud based collaborative solutions in digital education? क्लाउड बेस्ड में बताया था, कोई स्टोर करना, मैनेज करना एंड शेयर करना. जैसे कोई गूगल डॉक्यूमेंट्स आया, वर्कशीट, इसको मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो आप गूगल ड्राइव में रख सकते हो, वन ड्राइव में रख सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव में रख सकते हो, ड्रॉप बॉक्स में रख सकते हो. तो क्लाउड बेस्ड कोलैबोरेटिव सॉल्यूशंस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. इसको भी डिस्कस कर चुका हूं. क्वेश्चन 7, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशनल डाटा एनालिटिक्स टूल्स? डाटा एनालिटिक टूल्स में बता चुका हूं, जो पाइथन, SQL, एक्सेल, ये सब क्या है, मॉनिटर करना. इट मीन्स इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को क्या है, उनका डाटा को एनालाइज करना. ओके, डाटा को एनालाइज करना, एनालाइज करता है डाटा को प्रॉपरली, उनको प्रॉपरली मॉनिटरिंग होता है, और जो वीकनेस है टीचर्स डिटेक्ट करते हैं और उनको उस तरीके से वर्कशीट, मटेरियल्स, उनको सपोर्ट मिलता है. जो जिस एरिया में वीक में है वो कैसे उस एरिया में उनको और मोर ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, और डेफिनेटली दे परफॉर्म वेल इन दैट एरिया. तो डिजाइनिंग गैमिफाइड लीडर बोर्ड्स फॉर क्लासरूम क्विजेस, आइडेंटिफाइंग लर्निंग गैप्स एंड एनेबलिंग टारगेटेड डाटा इन्फॉर्म्ड इंटरवेंशंस. ऑप्शन बी, converting legacy textbooks into physical flashboards, providing VR head mounted display interfaces. Option B is the correct answer. क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट को हम डिटेक्ट करेंगे. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन. पर्सनल कंप्यूटर्स फर्स्ट entered classrooms during the 1980s primarily for word processing and educational games. करेक्ट है. Learning management systems such as Moodle and massive course platforms emerged during the late 1980s alongside the introduction of the first personal computers. नहीं, LMS जो आया, ये सब LMS such as Moodle for 2000 में आया. The expansion of the World Wide Web in the 1990s significantly broadened access to online study materials and institutional resources. ये करेक्ट है, इसको मैं डिस्कस कर चुका हूं. आप हिस्ट्री देखिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का. 1 और 3 करेक्ट है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है यूपीएससी में. ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए. क्वेश्चन नंबर 9 में अगेन हम करेक्ट स्टेटमेंट देखेंगे. 3 स्टेटमेंट्स गिवन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एजुकेशनल टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स. Canvas, Blackboard, Moodle function primarily as learning management system
to administer courses, distribute tests and track progress. Correct है. Duolingo and Quizlet are classified as mobile learning applications designed for accessible skill specific practice. ठीक है. Kahoot and Classcraft utilize gamification elements such as badges, points and leaderboards to foster student engagement. Correct है. तो करेक्ट पूछा है 1 2 3 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. आज का लास्ट क्वेश्चन है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हम डिटेक्ट करेंगे. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्लाउड टेक्नोलॉजी and data analytics in education. Cloud-based tools such as Google Drive and Microsoft OneDrive facilitate real-time document editing and remote collaboration. ठीक है, करेक्ट है. Educational data analytic tools are primarily designed to replace human teachers with automated grading algorithm. Designed to replace human teachers, ये गलत है. हाँ, एजुकेशनल एनालिटिक टूल्स है, वो स्टूडेंट्स को मॉनिटर कर रहा है, लर्निंग गैप को डिटेक्ट कर रहा है और उसको एनालाइज कर रहा है, और उसमें टीचर डिटेक्ट करता है कि ये चाइल्ड इसमें वीक है, तो उसको और वर्कशीट और लर्निंग मटेरियल्स को उसको प्रोवाइड किया जाता है. ठीक है. सेकेंड वन इनकरेक्ट है. एनालिटिक टूल्स असिस्ट इंस्टीट्यूशंस इन डिटेक्टिंग स्पेसिफिक लर्निंग गैप्स टू ऑर्गेनाइज डाटा इन्फॉर्म्ड एकेडमिक इंटरवेंशंस. ये करेक्ट है. तो यहां पर जो इनकरेक्ट है पूछा है ऑप्शन 2, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. तो ये था. तो फिर आप वेट कीजिए, ये मेरा पार्ट 4 है डिजिटल लिटरेसी के ऊपर, फिर आप पार्ट 5 को वेट कीजिए. So my friends, if suppose I am not expert one in computer, in artificial intelligence, in digital technology, just I have made this video examination point of view. If suppose you detect any lacuna or disadvantage, please forgive me, because only I made this video for the examination purpose. तो आज इतना ही है. थैंक यू एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू.